students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to revision through MCQ discussion series, and we will be revising the concepts of the chapter through MCQ discussions. Topic for this lecture is alkyl and aryl halides. So let's start with the questions. Before starting, make sure you subscribe to this channel so that you can get more and more videos on MCQs. It will help in revising the topic thoroughly, right? So beta, in the chapter of haloalkanes and haloarenes, already in one video we have taken up questions on alkyl halides, and you have taken up preparation methods, their physical properties, their chemical properties, their types of reactions, all that. And now in this video the main focus is on aryl halides, how aryl halides are produced. The reaction and the method will be different from the methods which were taken up for alkyl halides. And secondly, their physical properties, their chemical reactions, their use in the daily life. These haloalkanes and haloarenes, they are used as organic solvents, they are used in medicines, they are used as insecticide. All that daily life use we have to take up, we have to revise through these questions. Let's come to the first question. Question number 1 on the screen. Chlorobenzene can be prepared by reacting benzene disonium chloride with. So you are given benzene disonium chloride and this is to be converted to chlorobenzene, right? डाइजोनियम क्लोराइड आपके क्वेश्चन का स्टार्टिंग मटेरियल है और प्रोडक्ट आपको चाहिए क्लोरोबेंजीन. तो क्या ए ऑप्शन में लिखा HCl कैन डू और Cu2Cl2 कैन डू इन प्रेजेंस ऑफ HCl और क्लोरीन एंड AlCl3 और HNO2. सो लेट्स कम टू द रिएक्शन फर्स्ट. ऑप्शंस बाद में देखेंगे. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का बेटा ये स्ट्रक्चर है. नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर कॉल्ड azo compound. So two nitrogens diazo, they are attached on the benzene ring and Cl negative. तो benzene disonium chloride के साथ आप रिएक्शन करोगे Cu2Cl2 and HCl. ये बेटा कॉपर 1 सॉल्ट है, कॉपर 1 क्लोराइड है. इसको हम डाइजोनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं और आंसर आ जाता है क्लोरोबेंजीन. दिस इज योर प्रोडक्ट, क्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस that all, chlorobenzene and N2, right? So copper 1 chloride, copper 1 का मतलब है आप इसके लिए CuCl भी लिख सकते हो. For copper 1 you can write CuCl or Cu2Cl2 in presence of HCl. ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कॉपर का +1 है. Got it? So copper 1 की प्रेजेंस में हमारा ये रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट आता है क्लोरोबेंजीन. एज अ रिजल्ट आपका आंसर क्या बना? बी ऑप्शन. इन प्रेजेंस ऑफ HCl, copper 1 chloride will react with benzene disonium chloride. Coming to the next question. Second question is benzene plus chlorine in presence of FeCl3. What is the product X? You are given benzene and Cl2 is to be added. तो रिएक्शन देखो क्या आंसर आएगा. क्लोरोबेंजीन और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन. लुक एट द केमिकल रिएक्शन फर्स्ट. बेंजीन बेटा जब Cl2 से रिएक्ट करती है तो FeCl3 हमें चाहिए. FeCl3 यहाँ पे एनहाइड्रस कंडीशन में लिया जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है क्लोरोबेंजीन. Chlorobenzene plus HCl. So it is a substitution reaction. C6H6 आपका रिएक्टेंट था ना, C6H6. प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? C6H5Cl. कैन आई से 1 हाइड्रोजन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन. तो आंसर बना क्लोरोबेंजीन विल बी द प्रोडक्ट. गॉट इट? ए ऑप्शन इज द आंसर. अब आप डिटेल देखो रिएक्शन का. बेंजीन को जब क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो रिएक्शन है इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये नेम ऑफ मैकेनिज्म पता होना बहुत जरूरी है. इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है. इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से आएगा? FeCl3 की हेल्प से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है और फिर
वो अटैक करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर। बेंजीन रिंग इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेंजीन के पास पाई बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड्स आर द गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड इलेक्ट्रोफाइल देखो अब Cl प्लस है बेटा इलेक्ट्रोफाइल। आई एम शोइंग यू द रिएक्शन मैकेनिज्म। हमारे पास Cl2 था हमारा रिएक्टेंट, एंड ये FeCl3 के साथ कंबाइन करता है। Cl बॉन्ड टूट जाएगा विद द हेल्प ऑफ FeCl3 और आपका प्रोडक्ट बनेगा Cl प्लस एंड FeCl4 माइनस। इट एक्ट्स एज ए हैलोजन कैरियर। ये हैलोजन को ले जाता है, Cl नेगेटिव को ये ले गया। क्यों? क्योंकि FeCl3 लुईस एसिड है। लुईस एसिड होता है जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट इज इन नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ये Cl नेगेटिव को ले जाता है। एज अ रिजल्ट Cl प्लस इज जनरेटेड। सॉरी, आई हैव रिटन Cl माइनस, यहाँ Cl प्लस लिखना था। Cl प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल। गॉट इट? तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये तो आपके रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में अब ये बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैच हो जाता है एंड वी आर एबल टू गेट सम इंटरमीडिएट। हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड पार्शली टूट जाता है और क्लोरीन के साथ बॉन्ड पार्शली बन जाएगा एंड पॉजिटिव चार्ज इज देयर। दिस इज कॉल्ड एज एरीनियम आयन। एरीनियम आयन एरोमेटिक रिंग की वजह से, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिग्मा कॉम्प्लेक्स, राइट? एंड इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। मेन बात ये कैसे बन गया, ये तो कार्बोकेटाइन है, ये इंटरमीडिएट है, बट इट इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल है, इसलिए ये बन गया है। एंड यू आर हैविंग सेकेंड स्टेप कंप्लीट। और यही बेटा जो स्टेप है ना, ये सेकेंड, यही वाला डिफिकल्ट स्टेप है, ये स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप होता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। रिएक्शन का रेट इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये वाला इंटरमीडिएट बनेगा या नहीं बनेगा। गॉट इट? थर्ड नंबर पे अब फिर ये जो आपका इंटरमीडिएट बना था, दैट वाज हैविंग ए पार्शियल बॉन्ड विद हाइड्रोजन, पार्शियल बॉन्ड विद क्लोरीन एंड ए पॉजिटिव चार्ज, देयर विल बी लॉस ऑफ H प्लस। नाउ देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। ये वाला जो H प्लस है इसको हम बाहर निकालेंगे और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो बचे वहां, वो इलेक्ट्रॉन की हेल्प से यहां पाई बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। क्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट आ गया प्लस HCl प्लस FeCl3। गॉट इट? ये जो FeCl4 नेगेटिव बना था वो आके इस H प्लस को निकाल देता है, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है क्लोरोबेंजीन। दोबारा से देखो, हमारा रिएक्टेंट था बेंजीन। रिएक्टेंट को हमने क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया, बट FeCl3 मस्ट है, उसके बिना ये रिएक्शन नहीं हो सकता, और प्रोडक्ट इज क्लोरोबेंजीन। तो कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन की डिटेल क्या है? पहले तो इसके मैकेनिज्म का नाम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर आप देखोगे कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होता है, वो FeCl3 की हेल्प से होता है। इलेक्ट्रोफाइल है Cl प्लस, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल क्या है ये भी पूछ लिया जाता है। इलेक्ट्रोफाइल के बाद आप देखो बेंजीन रिंग के ऊपर वो अटैक करता है। बेंजीन पे जब वो अटैक करेगा तो एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसको क्लोरीन ने सिग्मा बॉन्ड से अटैच किया अपने आप को बेंजीन रिंग के साथ, इसलिए सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, देन FeCl4 negative will come and remove this hydrogen. You will be left with your product which is chlorobenzene. Got it? So इस तरीके से बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनता है। मैकेनिज्म इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल कौन है वो मेन बात है। इलेक्ट्रोफाइल है Cl प्लस, हमने यहाँ हाईलाइट भी कर दिया है। और Cl प्लस को बेटा क्लोरोनियम आयन कहते हैं। क्लोरोनियम आयन आपके रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है। आई कैन मेंशन हियर, इट इज कॉल्ड एज क्लोरोनियम आयन। Cl chlorine with a positive charge is called as chloronium ion. Got it? Let's come to the next question now. Question number 3. Third question is, which of the following is an example of Sandmeyer reaction? Sandmeyer reaction कौन सा है इनमें से? A ऑप्शन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड CuCl, B ऑप्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस वाटर,
सी के अंदर है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस HbF4 एंड डी के अंदर Ki के साथ प्रोडक्ट दिया है। ऑल दी 4 रिएक्शंस आर करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए वो सारे रिएक्शन ठीक हैं, बट सैंडमियर रिएक्शन फर्स्ट वाले का नाम है। सैंडमियर रिएक्शन क्या होता है? व्हेन वी हैव बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ट्रीटेड विद CuCl। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आप किससे ट्रीट करोगे? CuCl in presence of HCl, then the product is chlorobenzene plus N2, chlorobenzene and N2। एंड अगर यहाँ पे कॉपर पाउडर ले लिया जाए तो भी प्रोडक्ट आ जाएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इफ ट्रीटेड विद कॉपर पाउडर in presence of HCl, then also you will get the same product, that is chlorobenzene, but name of the scientist will be different। reaction का नाम हो जाता है फिर Gattermann's reaction। Gattermann's reaction। इस तरीके से आपको सैंडमियर रिएक्शन एंड Gattermann रिएक्शन दोनों लर्न करने हैं। नेम्ड रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन वन फॉर्म और द अदर फॉर्म दे आर आस्क्ड इन द एग्जाम। तो आंसर बनता है बेटा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है ये सैंडमियर रिएक्शन है। और इवन सी ऑप्शन में भी एक नेम्ड रिएक्शन है। सी ऑप्शन इज कॉल्ड बास-शीमन रिएक्शन। उसमें फ्लोरोबेंजीन बनता है, कीप इन माइंड। गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्लोरोबेंजीन ऑन रिएक्शन विद मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 गिव्स। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हो रहा है विद मिथाइल क्लोराइड, तो क्या प्रोडक्ट आएगा? ए ऑप्शन में दिया है टॉल्वीन, बी में दिया है मेटाक्लोरोटॉल्वीन और ऑर्थोक्लोरोटॉल्वीन और मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैराक्लोरोटॉल्वीन। सो क्वेश्चन करने से पहले साइड पे जो नोट है उसको देखते हैं। क्लोरोबेंजीन के काफी रिएक्शन यहां दिए हैं, 4 रिएक्शंस आर गिवन। क्लोरोबेंजीन अगर क्लोरीन से रिएक्ट करती है तो बेटा Cl अटैच होगा ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। ऑल दीज 4 रिएक्शंस आर इलेक्ट्रोफिलिक। इट इज a list of electrophilic substitution reactions. These are electrophilic substitution reactions. ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल अलग अलग होगा। पहला रिएक्शन जो है जिसमें क्लोरीन ऐड कर रहे हैं उसको कहते हैं क्लोरीनेशन। और जो Cl पहले से अंदर था, क्लोरोबेंजीन में एक Cl तो ऑलरेडी अंदर था ना, वो जो क्लोरीन है वो बेटा डायरेक्ट करेगा कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा। तो आपको लर्न करना है जो क्लोरोबेंजीन का Cl होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। इट विल डायरेक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। सो कैन आई मेंशन हेयर Cl क्लोरीन जो होता है इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, सो इट विल डायरेक्ट द इलेक्ट्रोफाइल टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो नाइट्रेशन जब होगी HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों डालेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। यू विल गेट नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा। अगर हम सल्फोनेशन करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड ऐड करना है। यू विल गेट बेंजीन, सल्फोनिक एसिड एंड क्लोरीन के विद रिस्पेक्ट टू ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे लगेंगे। 4th नंबर पे जो रिएक्शन है दिस इज कॉल्ड एज फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। इट इज कॉल्ड एज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। उसमें बेटा फिर से आपके पास CH3 अटैच होगा ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर। आपने मिथाइल क्लोराइड डाला तो CH3 ऐड होगा, अगर आपने इथाइल डाला तो C2H5 ऐड होगा। सो इट इज कॉल्ड एज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइल ग्रुप ऐड किया जाता है। ये सारे रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। और मेन बात याद रखने की क्या है कि हैलोजन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे लेके जाएगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है ये हैलोजन ड्यू टू रेजोनेंस। ये रेजोनेंस से रिंग के ऊपर अपने लोन पेयर दे देता है। एज अ रिजल्ट आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो ऑर्थो एंड पैरा पे लगेगा। तो अब देखो हमारे को स्टार्टिंग मटेरियल दिया था क्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन में क्लोरोबेंजीन को बोला था ट्रीट इट विद मिथाइल क्लोराइड। ये चेक कर लो, मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। सो CH3Cl एंड एनहाइड्रस AlCl3 आप ऐड करते हो
तो कहाँ पे CH3 को लगाना है, एक बारी ऑर्थो और एक बारी पैरा। Cl जो है हेलोजन जो है वो रिंग को प्लस m के थ्रू इलेक्ट्रॉन देता है। प्लस m मीन्स थ्रू, प्लस मीन्स डोनेशन, m मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट। तो मीजोमेरिक इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन रिंग को दे देगा, टोटल रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी। बट ऑर्थो पे और पैरा पे नेगेटिव चार्ज अकामुलेट हो जाता है, एज अ रिजल्ट CH3 वहां जाके अटैच होगा। ठीक है, तो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। हमारा आंसर बना मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो और पैरा में से वैसे पैरा ज्यादा होता है परसेंटेज में, पैरा की परसेंटेज ज्यादा है क्योंकि पैरा इज समवट मोर स्टेबल, बट मिक्सचर विल बी ऑब्टेन्ड, राइट। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में मेन बात हेलोजन जो है वो बेटा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ये बात याद रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 5। Fifth question is, you are given C6H5Cl, मतलब क्लोरोबेंजीन is given and sodium metal is given. What is the product X? X क्या बनेगा? Is it toluene or biphenyl, or it is phenylethane or 1-chloro-2-phenylethane? Let's write the reaction first of all. क्लोरोबेंजीन हमारे रिएक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल है, इसको हम सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे। 2 मोल क्लोरोबेंजीन बेटा रिएक्ट हो जाता है, 2 मोल इसके कंबाइन करेंगे, देयर विल बी लॉस ऑफ NaCl एंड यू विल बी लेफ्ट विद द ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। ये कंपाउंड आपको मिलेगा, इट इज कॉल्ड एज बाइफिनाइल। दिस इज कॉल्ड एज बाइफिनाइल। जैसे हमने वुड्स रिएक्शन किया था एल्काइल हैलाइड्स के अंदर, वुड्स रिएक्शन में बस एरोमेटिक रिंग नहीं थी, एलिफेटिक कंपाउंड था। तो सेम पैटर्न पे वुड्स रिएक्शन के जैसा ही है, बट एरोमेटिक रिंग हो अगर, फिर साइंटिस्ट का नाम चेंज हो जाता है, इसको फिर वुड्स रिएक्शन नहीं कहते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज फिटिग रिएक्शन। है ये वुड्स रिएक्शन के जैसा एकदम सेम, दिस इज कॉल्ड एज फिटिग रिएक्शन। योर प्रोडक्ट इज बाइफिनाइल, आई मीन टू से बी ऑप्शन। क्लियर? सो एरोमेटिक सिस्टम लेने हैं दोनों बारी। 2 मोल वॉज गिवन टू यू, 2 मोल ये, 2 मोल सोडियम, 2 मोल NaCl निकलेगा और प्रोडक्ट आएगा बाइफिनाइल। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्लोरोबेंजीन ऑन फ्यूजिंग विद सॉलिड NaOH गिव्स। आप क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराओगे विद NaOH तो क्या प्रोडक्ट आता है? इज इट बेंजीन और बेंजोइक एसिड और फिनोल और बेंजीन क्लोराइड? So let's write the reaction first. We have to take up chlorobenzene first of all. क्लोरोबेंजीन से हम स्टार्ट करेंगे, ट्रीट इट विद NaOH। ये रिएक्शन बेटा इतना इजी नहीं है, आपको फ्यूज करना पड़ेगा। फ्यूज मतलब मेल्ट, यू हैव टू हीट टू वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, तब जाके ये रिएक्शन होता है। अदरवाइज ये सब्सटीट्यूशन इजी नहीं है। हम चाहते हैं Cl बाहर चला जाए और OH अंदर आ जाए, इट विल बी डिफिकल्ट विदाउट हाई टेम्परेचर, आप ये नहीं कर पाओगे। तभी क्वेश्चन में लिखा है ऑन फ्यूजिंग। फ्यूजिंग मीन्स यू हैव टू मेल्ट योर कंपाउंड एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड विल बी फिनोल एंड NaCl। फिनोल एंड NaCl विल बी ऑब्टेन्ड। यही रिएक्शन एलिफेटिक सिस्टम में बहुत ईजी था। एलिफेटिक में ये था ना RX प्लस KOH और NaOH, आप चाहे KOH ले लो या NaOH ले लो, सेम बात है, प्रोडक्ट आ जाता है ROH प्लस NaCl। सो वेरी फास्ट रिएक्शन इन एलिफेटिक बट नॉट फास्ट इन एरोमेटिक। एरोमेटिक में आपको हीट करना है, विग्रस कंडीशंस देनी पड़ती हैं, इवन हाई प्रेशर भी अप्लाई करते हैं, तब जाके ये प्रोडक्ट आता है विच इज कॉल्ड एज फिनोल। गॉट इट? सो आंसर क्या बना? फिनोल मीन्स C ऑप्शन। C option is the answer. Let's come to the next question now. Question number 7. Chlorobenzene on nitration gives major product of. अब क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करना है। नाइट्रेशन करेंगे किसके साथ? नाइट्रेशन के लिए हम क्या क्या ऐड करते हैं? HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रेटिंग मिक्सचर ऐड होता है। स्टार्ट विद क्लोरोबेंजीन and you have to add HNO3 and sulfuric acid. तो नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा नाइट्रेशन के टाइम पे। नाइट्रो कहां कहां पे लगाना है?
अभी हमने टेबल में देखा था ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलेगा आपको, यू विल गेट 1-chloro-4-nitrobenzene। ये बेटा ऑर्थो है, दिस वन इज ऑर्थो प्रोडक्ट एंड द लोअर वन इज पैरा प्रोडक्ट। 1-4 पोजीशन को पैरा पोजीशन बोलते हैं, 1 and 4, 1, 2, 3 and 4। गॉट इट? तो आंसर क्या बना? 1-chloro-4-nitrobenzene विल बी फॉर्म्ड। 1-chloro-4-nitro, याद क्या रखना था कि हमें पैरा पोजीशन पे अटैच करना है। अब थोड़ा डिटेल देखो, ये जो हमने रिएक्शन किया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने क्या किया है, क्लोरोबेंजीन के अंदर नाइट्रो ऐड किया। कैसे ऐड किया? जो पैरा पोजीशन का H था वो रिमूव किया है। ये पैरा पे भी H था, H ऑर्थो पे भी था, ऑर्थो और पैरा के जो H हैं वो रिप्लेस कर दिए गए विद नाइट्रो। इलेक्ट्रोफाइल कौन है इस रिएक्शन का? नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन क्या होता है? NO2+, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोनियम आयन। तो रिएक्शन में NO2+ इज द इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। ये आपके पास NO2 लगा देगा ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी, राइट? तो अकेला HNO3 नाइट्रेशन नहीं कर सकता, अकेले HNO3 से नाइट्रोनियम आयन जनरेट नहीं होगा। नाइट्रोनियम आयन जनरेट करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड साथ में चाहिए। यू कैन सी द डिटेल। ये बेटा HNO3 लिखा मैंने, थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दिया। इट इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर से जो H+ है वो आके OH नेगेटिव को रिमूव कर देता है। ये एसिड बेस रिएक्शन हो गया। ये दोनों के कॉम्बिनेशन का नाम है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। HNO3 एंड H2SO4 इज कॉल्ड एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो ये देखो, ये जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है उसमें नाइट्रिक एसिड बेस की तरह एक्ट करता है क्योंकि वो OH नेगेटिव देता है, और सल्फ्यूरिक एसिड तो एसिड है ही है। सो H+ एंड OH नेगेटिव के लॉस से वाटर सेपरेट हो गया एंड यू आर लेफ्ट विद NO2+। NO2+ इज नाइट्रोनियम आयन एंड इवन HSO4 नेगेटिव इज ऑल्सो लेफ्ट बिहाइंड। तो इस तरीके से नाइट्रोनियम आयन जनरेट होता है। सल्फ्यूरिक एसिड हेल्प कर रहा है नाइट्रोनियम आयन को जनरेट कराने में। वो नाइट्रोनियम आयन एक इलेक्ट्रोफाइल है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि उसके खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल ऑन दी बेंजीन रिंग और क्लोरोबेंजीन रिंग एंड क्लोरीन भी प्रेजेंट है, तो वो क्लोरीन उसको डायरेक्ट करता है पैरा पोजीशन पे और ऑर्थो पोजीशन पे। तो आपका आंसर बनता है ए ऑप्शन, मतलब कि 1 and 4 पोजीशन इज कॉल्ड पैरा पोजीशन। Got it? Coming to the next now, question number 8. 8th question देखो, the reaction of C6H5Cl and Na is carried out with methyl iodide। पहले लिया आइडोबेंजीन, उसको ट्रीट किया विद मिथाइल आयोडाइड, तो प्रोडक्ट बन रहा है टॉल्वीन। इस रिएक्शन का नाम बताना है। प्रोडक्ट का नाम तो बेटा हमें पता है, इट इज टॉल्वीन। तो ये रिएक्शन क्या वुड्स रिएक्शन है या फिटिग रिएक्शन है? और वुड्स, फिटिग और सैंडमियर, अभी हमने बोला था कि अगर दोनों एलिफेटिक होते हैं, सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वुड्स रिएक्शन है। एक एलिफेटिक होगा और एक एरोमेटिक होगा, देन इट इज वुड्स फिटिग। अगर दोनों एरोमेटिक होते हैं तो फिटिग। ठीक है, कीप इन माइंड, फिटिग रिएक्शन अभी अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। अब ये बेटा वुड्स फिटिग रिएक्शन है। इन वुड्स फिटिग रिएक्शन वी हैव to start with क्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। क्लोरीन या आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं, आयोडीन तो और भी बेटर लिविंग ग्रुप है। सो आयोडोबेंजीन ट्रीटेड विद सोडियम एंड अदर कंपोनेंट इज एलिफेटिक, दैट इज मिथाइल आयोडाइड। देयर विल बी लॉस ऑफ NaI and you will be left with the product which is called as methyl benzene or toluene. This is called as Woods Fittig reaction. इन वुड्स फिटिग रिएक्शन टॉल्वीन प्रोडक्ट आता है एंड हेंस हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बना? सी ऑप्शन, इट इज कॉल्ड एज वुड्स फिटिग। अगर दोनों एलिफेटिक होते तो फिर हम उसको फिटिग रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन इज ऑन ट्रीटमेंट ऑफ टॉल्वीन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ Fe अंडर डार्क कंडीशंस। आपका रिएक्टेंट है टॉल्वीन, उसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराना है
Fe भी प्रेजेंट है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो पीछे वाले रिएक्शंस में रिएक्टेंट क्लोरोबेंजीन था, अब है टोलुइन। स्टार्ट विद टोलुइन, CH3 ऑन द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड एज टोलुइन। तो ठीक है बेटा, इसको हम क्लोरीन से ट्रीट करा देंगे। Fe की प्रेजेंस में, जब Fe की प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराते हो, ये दोनों मिलके Fe एंड क्लोरीन मिलके FeCl3 बनाते हैं। FeCl3 एक लुईस एसिड है। लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराएगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनेगा यहाँ पे? Cl+, क्योंकि आपका रिएजेंट Cl2 है। ठीक है, तो Cl+ जनरेट होगा कैसे? पहले तो Fe और Cl2 मिलेंगे और FeCl3 बनेगा। FeCl3 फिर क्या करता है? हेलोजन कैरियर की तरह एक्ट करता है, ये क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। एंड वी आर हैविंग FeCl4- एंड Cl+. दिस Cl+ इज कॉल्ड एज क्लोरोनियम आयन। ये क्लोरोनियम आयन अब कहां अटैक करेगा? ये बेंजीन रिंग के ऊपर जाएगा। आपके पास यहां टोलुइन का रिंग है। टोलुइन रिंग इज वेरी रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मिथाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन देता है और अंदर पाई बॉन्ड भी हैं। अब मिथाइल डिसाइड करेगा कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहां अटैच करना है। जो अंदर पहले से प्रेजेंट है ना बेटा, वो होस्ट होता है और ये गेस्ट है। जो बाहर से आ रहा है Cl+, वो गेस्ट है और होस्ट ने डिसाइड करना है कि जो गेस्ट होगा आके किस पोजीशन में रहेगा। ठीक है, तो CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं। Electron releasing groups will give electrons to the overall ring, but at ortho and para position वो electron density accumulate हो जाती है। As a result, ortho position पे और para position पे आप Cl को attach कर दोगे। ये बना CH3 and I have attached Cl at the ortho position as well as at the para it will be attached. Para के ऊपर भी आप लगा दोगे CH3 and Cl. Got it? So question में टोलुइन दिया था और क्लोरीन ऐड कर रहे थे। कभी कभी रिएक्टेंट में पहले से क्लोरीन होती है और फिर हम CH3 ऐड करते हैं। तो जो पहले प्रेजेंट है उसने डिसाइड करना है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का पोजीशन क्या होगा। आपका आंसर बन रहा है ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो टोलुइन। आई मीन टू से ए ऑप्शन इज द आंसर। क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट, ये रिएक्शन भी वही था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूट किसको किया है हमने? हाइड्रोजन को। इस पोजीशन पे जो हाइड्रोजन थी ऑर्थो पे और पैरा पे, वो सब्सटीट्यूट होती है और Cl आप अटैच कर देते हो। एक बारी ऑर्थो पे लगा दोगे, एक बारी आप पैरा पोजीशन पे लगा दोगे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन देखिए, एराइल हैलाइड्स आर less reactive towards nucleophilic substitution reactions as compared to alkyl halides due to। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन जल्दी से नहीं करते हैं, दे आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड्स। वाई? क्या रीजन है? एराइल हैलाइड्स में रिएक्शन स्लो क्यों होता है? ऑप्शंस हैं, क्या कोई लेस स्टेबल फ्री रेडिकल बनता है और रेजोनेंस हो जाती है, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आती है और इंडक्टिव इफेक्ट और लार्ज कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एराइल हैलाइड्स आर गिवन टू यू, दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन वेरी लेस इजिली, लेस रेडिली। एराइल हैलाइड्स आर less reactive. Even in your subjective paper this question is asked and even in objective you can see, objective में भी पूछ रहे हैं less reactive क्यों होते हैं as compared to alkyl halides। उसके रीजन, सबसे पहली बात तो रेजोनेंस है इसके अंदर, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। हम अपना आंसर 3 पॉइंट्स में देंगे, 3 पॉइंट्स के अंदर। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, कौन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? एराइल हैलाइड। देखो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, क्लोरोबेंजीन आपका रिएक्टेंट एंड यू हैव लोन पेयर ऑन दी हेलोजन, देयर विल बी रेजोनेंस, मतलब प्लस एम इफेक्ट। ये जो हेलोजन है ये अपना लोन पेयर यहां डोनेट कर देता है क्योंकि कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर आपको दिख रहा है, डबल, सिंगल एंड लोन पेयर, ये सिचुएशन दिख रही है हमारे क्लोरोबेंजीन में।
दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, तो इसको हम अभी रब कर देते हैं। हमारे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम अपने रिएक्टेंट के अंदर है। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बेटा डबल बॉन्ड बन गया। जिस बॉन्ड को ब्रेक करना था उसी के अंदर डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, और क्लोरीन के ऊपर 3 की जगह 2 लोन पेयर रह गए। हेंस क्लोरीन विल एक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज एंड यू विल हैव द मूवमेंट ऑफ बॉन्ड्स ऑल्सो। किसी भी कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं करने, एवरी कार्बन हैज टू मेंटेन द टेट्रा कोवेलेंसी। नेगेटिव चार्ज आ गया एट द ऑर्थो पोजीशन। इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये फिर मूव करेगा नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट में आप नेगेटिव चार्ज को मूव करो, यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, फिर नेक्स्ट डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एकमुलेट हो जाएंगे पैरा पोजीशन पे। तो ये आंसर बना। द थर्ड स्ट्रक्चर इज वी हैव अ बेंजीन रिंग, नेगेटिव चार्ज एट द पैरा पोजीशन and these are the double bonds. Chlorine is still having 2 lone pairs, hence chlorine is carrying a positive charge. In the next structure हम क्या दिखाएंगे कि फिर से नेगेटिव चार्ज माइग्रेट करता है, मूव करता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो पाई बॉन्ड के, ये यहाँ पे और नेक्स्ट ऑर्थो पोजीशन पे एकमुलेट हो जाएंगे। आपके पास नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज जो है अब वो पैरा से हट के ऑर्थो पे आ गया, नेगेटिव ऑर्थो पे आ गया, एंड क्लोरीन इज स्टिल कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन इज हैविंग 2 लोन पेयर्स। इन दिस वे ड्यू टू रेजोनेंस आपने देखा कि जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं सारे स्टेबल हैं। रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आती है मॉलिक्यूल में, और कार्बन और क्लोरीन में डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। फिर अगर मुझे नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना हो तो इस तरीके से फिर मूव करेंगे। फिर ओरिजिनल स्ट्रक्चर वापस, क्लोरीन का पॉजिटिव चार्ज हमने हटा दिया, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर कंप्लीट कर दिए, एंड दीज आर दी पोजीशंस ऑफ द डबल बॉन्ड्स। सो ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आपका आंसर बनेगा। इस वजह से रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं एराइल हैलाइड के अंदर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता या फिर विग्रस कंडीशन में होता है स्लो रेट पे। ठीक है, तो अब और भी 2-3 पॉइंट्स हैं आंसर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेकेंड नंबर पे हम ये कह सकते हैं कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन हैज एक्वायर्ड द डबल बॉन्ड करेक्टर। आपने देख ही लिया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, आपने हर स्ट्रक्चर में देखा है कि डबल बॉन्ड बन रहा है, ये डबल बॉन्ड आ रहा है। तो डबल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाता है। सो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन हैज लेस बॉन्ड लेंथ, it has lesser bond length. बॉन्ड लेंथ इसकी बेटा 1.69 एंगस्ट्रॉन, इसको आप 169 पिकोमीटर भी बोल सकते हो। क्लोरोबेंजीन में ये जो बॉन्ड लेंथ होती है ये 169 पिकोमीटर है। और अगर हम मिथाइल क्लोराइड देखें, मिथाइल क्लोराइड में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इज 177 पिकोमीटर। तो ये शॉर्टर बॉन्ड हो गया ना क्लोरोबेंजीन का। शॉर्टर हुआ क्यों है? डबल बॉन्ड करेक्टर आया था, तो इस वजह से इसके पास डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट है। तो रेजोनेंस का एविडेंस है, रेजोनेंस हो रही है, ये हमें कैसे पता चलता है? बॉन्ड लेंथ के थ्रू आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट लिखते हैं। ये सारा फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिंक हो रहा है। सेकंड पॉइंट देखो, डायपोल मूवमेंट भी चेक कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन इज लेस पोलर, क्लोरोबेंजीन इज लेस पोलर। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अगर स्ट्रांग होते हैं तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी से अप्रोच करता है, यहां पोलैरिटी कम हो जाएगी क्योंकि क्लोरोबेंजीन ने जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया था क्लोरीन ने, क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इंडक्टिव इफेक्ट से वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, -I कर रहा है क्लोरीन, तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। बट उस पॉजिटिव चार्ज को क्लोरीन ने खुद ही स्पॉइल कर दिया बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द कार्बन। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स दे भी तो दिए, थ्रू रेजोनेंस इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे थे। एज अ रिजल्ट फिर पोलैरिटी कम हो जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। एल्काइल हैलाइड्स आर मोर पोलर, एल्काइल हैलाइड्स आर मोर पोलर। मोर पोलर मीन्स मोर फास्ट टू रिएक्ट, इलेक्ट्रोफाइल फिर जल्दी से रिएक्ट आ जाता है, अप्रोच करता है। यू हैव लेट्स से CH3Cl, तो क्लोरीन पे नेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव है, डेल्टा पॉजिटिव स्ट्रांग है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट हो जाता है।
तो ये 2-3 पॉइंट्स के अंदर आपने एक्सप्लेन करना है कि रेजोनेंस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन मेन आंसर आएगा रेजोनेंस। अगर कोई आपको पोलैरिटी दे दे ऑप्शंस में तो भी आंसर है कि एराइल हैलाइड्स लेस पोलर होते हैं इसलिए लेस रिएक्टिव होते हैं। आंसर बनता है हमारा बी ऑप्शन, राइट। सो ये चैप्टर का मेन पॉइंट है कि एराइल हैलाइड्स के रिएक्शन स्लो होते हैं जबकि एल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शन फास्ट होते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, replacement of chlorine of chlorobenzene to give phenol requires drastic condition। ठीक है, हमने देखा भी है क्लोरोबेंजीन से अगर फिनोल बनाना है तो हीट करना पड़ता है टू वेरी हाई टेम्परेचर, इवन मेल्ट करना पड़ता है, हाई प्रेशर देना पड़ता है। बट अगर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन हो then it is replaced easily, it is replaced readily। why? ऑप्शंस हैं, नाइट्रो ग्रुप विल मेक द रिंग रिच एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, नाइट्रो विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटा पोजिशन, और नाइट्रो विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एट द ऑर्थो पोजिशन, और नाइट्रो विड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्थो पैरा। ठीक है, तो क्वेश्चन ने ये बोला है कि अगर नाइट्रो ग्रुप लगा होगा रिएक्शन फास्ट हो जाता है। वाई सो? देखो साइड पे टेबल को देखते हैं पहले। टेबल के अंदर बेटा ये दिखाया है कि अगर आपके रिएक्टेंट में एक नाइट्रो लगा है तो Cl का रिप्लेसमेंट OH के साथ होगा और 433 केल्विन तक आपको हीट करना पड़ेगा, राइट। अगर हमारे पास दो नाइट्रो लगेंगे तो भी रिएक्शन हो रहा है सेम तरीके से, बट अब टेम्परेचर कम है, अब ज्यादा हीट नहीं करना पड़ता। 433 की जगह 368 हो गया। अगर 3 नाइट्रो लगे तो रिएक्शन बहुत फास्ट है, 323 केल्विन पे ही रिएक्शन हो रहा है, लो टेम्परेचर आ गया। अदरवाइज एक नाइट्रो पे आपको बहुत हीट करना पड़ रहा था। और जब एक भी नाइट्रो ना हो, लेट्स से कि रिएक्टेंट में कोई भी नाइट्रो नहीं है, क्वेश्चन की पहली लाइन ही यही थी कि आप क्लोरोबेंजीन को जब फिनोल में कन्वर्ट करते हो बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है। वो हाई टेम्परेचर बेटा 623 केल्विन होता है। क्या टेम्परेचर है? 623 केल्विन। एज अ रिजल्ट हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है फिनोल एंड साइड प्रोडक्ट बनेगा NaCl। बट लेट्स कम टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अगर नाइट्रो लगे हों तो फिर ये रिएक्शन फास्ट हो रहा है। टेबल के थ्रू आपको दिख रहा है, एक नाइट्रो से 623 की जगह हम 433 पे पहुंच गए। 2 नाइट्रो होंगे तो और इजी, और 3 नाइट्रो होंगे तो फिर ज्यादा हीट नहीं करना पड़ता, सिर्फ 323 तक। वाई सो? देखो बात यह है कि जो नाइट्रो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस रिंग के ऊपर लग जाए, इस रिंग पे अगर कहीं हम ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो वो नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। नाइट्रो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इंटरमीडिएट स्टेबल हो जाता है। एज ए रिजल्ट फिर प्रोडक्ट का रेट ऑफ फॉर्मेशन फास्ट हो जाएगा। गॉट इट? तो हम क्या करते हैं, नाइट्रो इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये बात याद रखेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, चाहे आप यहां साइनाइड लगा दो तो भी इलेक्ट्रॉन वो विड्रॉ करेगा। तो इट विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द रिंग एंड पर्टिकुलरली वो ऑर्थो, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो नाइट्रो के साथ रिंग से जब नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो रिंग के ऊपर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इट विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द रिंग particularly from ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। पर्टिकुलरली यहां पे पूरा लिखा नहीं जा रहा है, ठीक है। इट विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द रिंग, ब्रैकेट में लिख देते हैं, फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। गॉट इट? तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेने। एज अ रिजल्ट आपके पास आंसर बनता है फिर डी ऑप्शन। नाइट्रो विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। गॉट इट? तो रिजल्टिंग जो इंटरमीडिएट है वो कार्बन आयन है, वो स्टेबल हो जाता है, तो फिर ये वाला रिएक्शन इजिली हो जाएगा, अदरवाइज रिएक्शन डिफिकल्ट है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 12।
क्लोरीन एटम इन क्लोरोबेंजीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बिकॉज क्लोरीन एटम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ले जाता है, जबकि क्लोरीन तो -I शो करता है, फिर भी ये ऑर्थो पैरा पे ले जाता है। जो भी विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं बेटा वो मेटा डायरेक्टर होते हैं, जो रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, क्या रीजन है? ऑप्शंस आर रेजोनेंस इफेक्ट प्रीडोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, inductive effect predominates over resonance, or both inductive and resonance are evenly matched, or only resonance effect is operating। तो क्लोरीन के अंदर दो तरह के इफेक्ट होते हैं। कौन कौन से दो इफेक्ट हैं क्लोरीन में? पहले हम क्लोरोबेंजीन ड्रॉ करेंगे। क्लोरोबेंजीन का क्वेश्चन है, आप ये देखो, अगर सिग्मा बॉन्ड का हम कंसीडर करें तो क्लोरीन का -I है। कार्बन से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सो -I से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। बट लोन पेयर जो है ना इसके ऊपर, वो कॉन्जुगेशन में आ जाता है। क्लोरीन विल डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द बेंजीन रिंग, सो रेजोनेंस इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इट विड्रॉज इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। क्लोरीन ने इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेने हैं, बट थ्रू रेजोनेंस +R के लिए क्या बोलेंगे हम? क्लोरीन जो है इट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट। इट विल रिलीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू रेजोनेंस। एज अ रिजल्ट रेजोनेंस ही तो डोमिनेट करा, तभी तो क्लोरीन के पास ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, तो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बनता है, वरना क्लोरीन के अंदर दोनों इफेक्ट है और दोनों ऑपोजिट हैं। यहां रेजोनेंस से विड्रॉ नहीं हो रहे हैं, रेजोनेंस से रिलीज हो रहे हैं, पर इंडक्टिव इफेक्ट से विड्रॉ हो रहे हैं। दो एक तरह से यूनिक प्रॉपर्टीज हैं ये हैलोजन की। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया है? ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, यू आर गेटिंग समथिंग कॉल्ड A, दैट A कंपाउंड इज रिएक्टेड विद वाटर टू गिव B। B को आइडेंटिफाई करना है, B कंपाउंड क्या है? मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन नहीं है बेटा, रिंग नहीं है अंदर, एक तो ये बात याद रखो। यू आर गिवन साइक्लोहेक्साइल रिंग। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा इस रिएक्शन के थ्रू। वी हैव दिस रिंग, साइक्लोहेक्साइल रिंग अटैच्ड विद ब्रोमीन। इसका रिएक्शन मैग्नीशियम से करते हैं, RMgX इज कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ये स्ट्रक्चर बन जाएगा MgBr। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन चुका है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो एलिफेटिक में भी बन जाता है, एरोमेटिक में भी बन जाता है। हमारे यहाँ पे हमें एलिफेटिक दिया, रिंग नहीं है अंदर। ठीक है, कहने का मतलब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। आपने आइडेंटिफाई कर लिया आपका कंपाउंड ए कंपाउंड का आंसर आ गया। फिर इसमें वाटर डालना है और फिर कुछ कंपाउंड बी बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर नॉट एट ऑल स्टेबल इन वाटर। याद रखने की बात है, जो वाटर है वो एसिड की तरह एक्ट करता है, वाटर का H रिमूव हो जाएगा और वो ग्रिग्नार्ड का जो R ग्रुप था वो H ले लेगा, एंड यू आर लेफ्ट विद MgOH Br बन जाएगा। ठीक है, ग्रिग्नार्ड का जो बेटा R ग्रुप था ना, ये ग्रिग्नार्ड का R ग्रुप है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ये H निकाल देता है, वाटर का भी इसने H खुद निकाल के अपने पास ले लिया और वाटर के पास पीछे सिर्फ OH नेगेटिव बच गया। कीप इन माइंड, R ग्रुप ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, R ग्रुप ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये जो R था ना ग्रिग्नार्ड का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और ग्रिग्नार्ड इस वजह से वाटर में कभी स्टेबल नहीं होता। ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन ईथर में करते हैं, वाटर में नहीं करते। एज अ रिजल्ट फिर आपका आंसर क्या बनता है? ए ऑप्शन। देखो हमने यही प्रोडक्ट बनाया था, दिस इज द प्रोडक्ट कॉल्ड एज साइक्लोहेक्सेन। प्रोडक्ट का नाम हम लिख देते हैं, इट इज साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड आपको दिया हुआ था एज ए रिएक्टेंट। योर आंसर बिकम्स ए। गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन में एनिलीन आपका रिएक्टेंट है।
दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एनिलीन। एनिलीन के ऊपर हम कुछ डाल रहे हैं NaNO2 एंड HCl। NaNO2 इज कॉल्ड सोडियम नाइट्राइट। NaNO2 एंड HCl बेटा जब मिलते हैं ये HNO2 बना देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रस एसिड। एंड टेम्परेचर कंडीशन है 0 to 5 डिग्री। 5 डिग्री तक ही ये टेम्परेचर का वेसल का टेम्परेचर 5 डिग्री रहेगा। एंड यू आर गेटिंग सम कंपाउंड X. That compound X is treated with CuCl, you are getting something called Y. And then Y is treated with methyl chloride in presence of sodium, product Z is obtained. ये Z हमें ढूंढना है, ठीक है। तो रिएक्शंस हम लिखना स्टार्ट करते हैं। एनिलीन को हम इसके साथ NaNO2 से ट्रीट कर रहे हैं। ये बेटा डाइजोनियम क्लोराइड का प्रेपरेशन है। एनिलीन को हम किससे ट्रीट कर रहे हैं? विद NaNO2 and HCl at 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। 0 से लेके 5 तक ही डाइजोनियम क्लोराइड स्टेबल होता है, 5 से ऊपर डाइजोनियम क्लोराइड स्टेबल नहीं होते हैं। तो ये प्रोडक्ट बन गया। याद रखना है प्रेपरेशन ऑफ डाइजोनियम क्लोराइड ऐसे करी जाती है। उसके बाद ये X आ गया। अब CuCl से रिएक्ट करो। CuCl से जब रिएक्ट करोगे तो ये बन जाएगा सैंडमियर रिएक्शन। सैंडमियर रिएक्शन से प्रोडक्ट बनता है क्लोरोबेंजीन प्लस N2। गॉट इट। फिर बेटा Y आ गया। अब मिथाइल क्लोराइड एंड सोडियम, लेट्स राइट इट Y। अब इसको फर्दर ट्रीट करना है Y को विद मिथाइल क्लोराइड एंड सोडियम की प्रेजेंस में। तो ये अभी अभी हमने किया भी था, ये बनता है वुड्स-फिटिग रिएक्शन। देयर विल बी लॉस ऑफ NaCl, 2 मोल NaCl will be removed out और मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा प्लस 2 NaCl। दिस इज कॉल्ड एज टॉलुइन। क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना था ना। सो देखो XYZ का सीक्वेंस के थ्रू रिएक्शन चल रहा था, आपका प्रोडक्ट आ रहा है टॉलुइन। टॉलुइन इज ऑब्टेन्ड, हेंस आंसर इज ए ऑप्शन। मतलब एक ही क्वेश्चन में पहला स्टेप जो है उसको डाईएजोटाइजेशन कहते हैं, दूसरे स्टेप का नाम है सैंडमियर रिएक्शन, तीसरे का नाम है वुड्स-फिटिग रिएक्शन। 3 नेम्ड रिएक्शन एक ही रिएक्शन के अंदर आ रहे हैं, एक ही क्वेश्चन के अंदर आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन का मतलब है डाइजोनियम क्लोराइड का बनना। उसके बाद सैंडमियर है, ये सेकंड वाले का नाम है सैंडमियर्स रिएक्शन। एंड थर्ड वन इज वुड्स-फिटिग रिएक्शन। वुड्स-फिटिग पहले भी आया था, वी कैन मेंशन हियर, दिस इज कॉल्ड एज वुड्स-फिटिग। वुड्स-फिटिग में एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक होता है। सो आंसर बना है ए ऑप्शन। गॉट इट। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 15। सो हमारा रिएक्शन है फ्लोरोबेंजीन कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी बाय। देखो ये प्रेपरेशन है फ्लोरोबेंजीन का। फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरीन के कंपाउंड्स कभी भी डायरेक्ट मेथड से नहीं बनाए जाते। F2 बेटा बहुत रिएक्टिव हेलोजन है, वायलेंस क्रिएट कर देता है। F2 इज कॉल्ड सुपर हेलोजन। तो सीधा सीधा ऐसा नहीं होता कि आप रिएक्टेंट कोई और लेके उसमें F2 ऐड कर दो। आई मीन टू से सी ऑप्शन से फ्लोरोबेंजीन नहीं बनेगा। सी में तो लिखा है कि आप डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन करो, दैट विल नॉट लीड टू द फाइनल प्रोडक्ट। ए ऑप्शन में लिखा है बाय हीटिंग फिनोल विद HF, और बी ऑप्शन इज बाय टेकिंग फ्रॉम एनिलीन बाय डाईएजोटाइजेशन। एनिलीन से पहले डाइजोनियम क्लोराइड बनाओ, फॉलोड बाय हीटिंग द डाइजोनियम सॉल्ट विद HbF4। यस, ये बेटा इनडायरेक्ट मेथड हमें फॉलो करना पड़ता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरीन। जैसे क्लोरोबेंजीन बनाना है तो सीधा सीधा CuCl डालते हैं, सैंडमियर रिएक्शन होता है। बट यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन इज नॉट पॉसिबल। तो क्या तरीका होता है, आपको स्टार्ट करना है एनिलीन से। एनिलीन का हम रिएक्शन कराते हैं विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। कैसे? डाईएजोटाइजेशन कैसे करते हैं? HNO2 डालते हैं। HNO2 का नाम है नाइट्रस एसिड। बट ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता, ये लैब में रखा नहीं जाता, ये रिएक्शन वेसल में उसी टाइम बनाना पड़ेगा बाय टेकिंग NaNO2 एंड HCl। फ्रॉम 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आपके पास डाइजोनियम क्लोराइड आ गया। अब ये डाइजोनियम क्लोराइड
को हमने फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, लेट मी राइट इट अगेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिख के HbF4 के साथ आप ट्रीट करोगे एंड यू विल बी गेटिंग दिस मॉलिक्यूल। ये बेटा HCl हटा दो, आपके पास ये सॉल्ट बन जाता है N2 प्लस एंड BF4 नेगेटिव। N2 प्लस एंड BF4 नेगेटिव। ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ए के ऊपर नेगेटिव है। दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। टेट्राफ्लोरोबोरेट सॉल्ट बन गया। 4 फ्लोरीन है ना, टेट्राफ्लोरोबोरेट सॉल्ट, डाइजोनियम क्लोराइड का सॉल्ट बना। उसके बाद बी ऑप्शन दोबारा से देखो। बी ऑप्शन में क्या था कि पहले एनिलीन लो, ये आपने एनिलीन लिया। एनिलीन को हम क्या करते हैं, डाईएजोटाइजेशन कराते हैं। उसके बाद फिर हम हीट कर देंगे डाइजोनियम सॉल्ट को विद HbF4। हीट करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट एंड यू विल बी लेफ्ट विद फ्लोरोबेंजीन प्लस BF3 प्लस N2। गॉट इट। तो ये जो रिएक्शन है बेटा, ये नेम्ड रिएक्शन है। इट इज कॉल्ड एज बाल्स-शीमन रिएक्शन। बाल्स-शीमन रिएक्शन हमारे सिलेबस का मेन रिएक्शन है। जैसे कि आपने देखा सैंडमियर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, ऐसे फ्लोरोबेंजीन वाला डायरेक्ट मेथड नहीं, से डायरेक्ट मेथड से नहीं बनता। इनडायरेक्टली बाल्स-शीमन साइंटिस्ट ने हेल्प किया कि किस तरीके से आप फ्लोरिनेशन कर सकते हो। गॉट इट। तो आंसर बना ऑप्शन बी, राइट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सम स्ट्रक्चर इज गिवन, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, उसको ट्रीट करना है विद NaCN इन प्रेजेंस ऑफ DMF। DMF सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, डाईफ्लोरोफॉर्मामाइड, सॉरी डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है, DM है ना। तो आपके पास ये जो आयोडीन है उसका रिएक्शन होगा साइनाइड के साथ या क्लोरीन का रिएक्शन होगा। तो बेटा यहां तो एराइल हैलाइड बना हुआ है ना, आयोडीन इज अटैच टू द बेंजीन रिंग डायरेक्टली। वो अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगी रेजोनेंस के थ्रू। एज अ रिजल्ट कार्बन और आयोडीन तो डबल बॉन्ड करेक्टर एक्वायर कर लेगा, वो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये आपका मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का ये स्ट्रक्चर है और CH2Cl गिवन था। आयोडीन एरोमेटिक रिंग पे डायरेक्टली अटैच्ड है बट क्लोरीन डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, क्लोरीन तो CH2 के ऊपर अटैच्ड है। फिर साइनाइड के साथ NaCN में से जो साइनाइड है वो न्यूक्लियोफाइल है और ये डेल्टा पॉजिटिव है। एज अ रिजल्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। तो आयोडीन को नहीं हटाना। क्यों नहीं हटाना, वैसे तो आयोडीन एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, हम फिर भी आयोडीन को नहीं हटा रहे, क्लोरीन को हटा रहे हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज हमारे पास आयोडीन तो एरोमेटिक रिंग के ऊपर लगी थी। एराइल हैलाइड्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इजी नहीं होते हैं। यू विल गेट द स्ट्रक्चर CH2 एंड देन उस CH2 के साथ साइनाइड लगा देंगे और आयोडीन यहां बॉटम पे एज सच रहेगी। तो ए ऑप्शन में दोनों को रिप्लेस कर दिया, बी के अंदर आयोडीन रखा है बट साइनाइड कहीं और अटैच कर दिया। आपने Cl को हटा के साइनाइड लगाना है। आंसर बेटा डी ऑप्शन बनेगा। Cl नहीं है, अब साइनाइड है प्रोडक्ट में। सो ये आपके रिएक्शन का प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आप चेक कर सकते हो कि एलिफेटिक पार्ट है ना, ये एलिफेटिक पार्ट के ऊपर आपने करना है ये रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक पे नहीं करना। Coming to the next question, question number 17. Which of the following is most reactive towards nucleophilic substitution reaction? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन करेगा फास्ट? क्लोरोबेंजीन एक ऑप्शन दिया है, फिर दिया है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 2,4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड देन 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज गिवन। मतलब एक कंपाउंड में तो एक भी, ए ऑप्शन में एक भी नाइट्रो नहीं है, बी के अंदर 3 नाइट्रो लगाए हैं, बाकियों में फिर 2 और 1। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें सारे एरोमेटिक सिस्टम दिए हैं। ऐसा नहीं है कि एलिफेटिक और एरोमेटिक का कंपैरिजन है, ऑल ऑफ देम आर एरोमेटिक।
अब एरोमेटिक में जब नाइट्रो लग जाता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है इजिली, और मोर इज द नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप्स अटैच्ड, मोर विल बी द रेट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। गॉट इट? तो जितना आप नाइट्रो ज्यादा लगाओगे, हम 3 नाइट्रो लगा रहे हैं, बी ऑप्शन में 3 नाइट्रो लगा रखे हैं। कहां कहां लगाना है नाइट्रो? 2, 4, 6 पे। बी ऑप्शन ने लिखा है 2, 4 एंड 6, ये सेकंड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन और ये सिक्स्थ पोजीशन। ऐसा करेंगे अगर तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट हो जाती है। इवन रूम टेम्परेचर तो नहीं, बट 323 केल्विन पे रिएक्शन हो जाता है। आप NaOH से ट्रीट करो, ये प्रोडक्ट बनता है। रिएक्शन के अंदर OH आ गया, Cl हट गया, नाइट्रो अटैच हो गए। एंड बेटा प्रोडक्ट हैज अ स्पेशल नेम, प्रोडक्ट को यहाँ प्रोडक्ट का नाम पिक्रिक एसिड है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। तो नाइट्रो क्या हेल्प कर रहा है? नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करता है। एज अ रिजल्ट जब इंटरमीडिएट स्टेबल हो गया तो फास्ट रेट पे फिर प्रोडक्ट आएगा। अकेला क्लोरोबेंजीन होता तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत डिफिकल्ट है, जितने नाइट्रो लगेंगे उतना रेट फास्ट होता रहेगा। एज अ रिजल्ट आपका आंसर बनता है ऑप्शन बी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन 18 है, क्लोरीन इज लीस्ट रिएक्टिव इन। लीस्ट रिएक्टिव क्लोरीन, सबके अंदर बेटा ऑप्शंस में क्लोरीन गिवन है, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन एंड एलाइल क्लोराइड। तो किसका क्लोरीन लीस्ट रिएक्टिव होगा? कैन आई से फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन? ये तो बेटा एल्काइल हैलाइड्स है ना, दे आर एल्काइल हैलाइड्स, ये भी एल्काइल हैलाइड है, बट ये एराइल हैलाइड है। एराइल हैलाइड के अंदर रिएक्शन फास्ट नहीं होता, हैलोजन रिएक्ट नहीं करता ड्यू टू रेजोनेंस। एलाइल क्लोराइड क्या है? डी ऑप्शन देखो, एलाइल क्लोराइड का ये स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज एलाइल क्लोराइड। तो है तो ये एल्काइल हैलाइड, और ये भी बहुत रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इसका अगर हैलोजन रिमूव कर दिया जाए, जब ये हैलोजन को लूज करेगा आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा। ये कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल होता है, दिस इज कॉल्ड एज एलाइल कार्बोकेटायन। इट इज कॉल्ड एज एलाइल कार्बोकेटायन एंड इट इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर पॉजिटिव चार्ज, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड है, इसलिए कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगी। अगर मुझे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो ये स्ट्रक्चर है CH2 CH देन CH2 पॉजिटिव चार्ज, दिस इज एलाइल कार्बोकेटाइन। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मतलब पॉजिटिव चार्ज, उस डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करते हैं एंड फिर पॉजिटिव चार्ज दूसरे कार्बन पे आ जाता है। एज अ रिजल्ट ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज स्प्रेड ओवर 3 कार्बन्स। पॉजिटिव चार्ज बेटा एक कार्बन की नहीं, अब तीनों कार्बन की प्रॉब्लम है, इस वजह से स्टेबिलिटी आती है। डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज इज शेयर्ड बाय ऑल द 3 कार्बन्स, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। फॉर किसका हाइब्रिड बनाया हमने? एलाइल कार्बोकेटायन का। ठीक है, तो एलाइल कार्बोकेटायन स्टेबल है, इस वजह से जो एलाइल क्लोराइड है ये जल्दी से क्लोराइड को लूज कर देता है। ये क्लोराइड सेपरेट हो गया और क्लोराइड के निकलने के बाद पीछे रह गया एलाइल कार्बोकेटायन। एंड एलाइल कार्बोकेटायन का हमने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। एज अ रिजल्ट अब इसका हैलोजन तो बाहर आ जाएगा, हैलोजन इसका लेबाइल है, जिसका हैलोजन रिएक्ट करता है उसको लेबाइल कहते हैं। पर क्लोरोबेंजीन के अंदर हैलोजन इनर्ट होता है। इन क्लोरोबेंजीन वी हैव इनर्ट हैलोजन बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से ये रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्लोरीन जब अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाता है, टू सम एक्सटेंट डबल बॉन्ड करेक्टर एक्वायर करता है। एज अ रिजल्ट इट इज नॉट इजी टू ब्रेक दैट बॉन्ड। सो आंसर आ गया सी ऑप्शन। Got it? Coming to the next now. Chlorobenzene on reaction with acetyl chloride in presence of anhydrous AlCl3 will produce what? क्लोरोबेंजीन आपका रिएक्टेंट है, तो क्या प्रोडक्ट फिनोल बनेगा या एसिटिक एसिड या पैराक्लोरो एसिटोफिनोन और नन ऑफ दीज? लुक एट द रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन
हम स्टार्ट करते हैं क्लोरोबेंजीन से और ट्रीट किससे करना है, एसिटाइल क्लोराइड. दिस इज कॉल्ड एज एसिटाइल क्लोराइड, CH3COCl in presence of anhydrous AlCl3. You will get the reaction product as क्लोरीन लगेगा, टॉप पे क्लोरीन तो है बट COCH3 अटैच हो जाएगा. कहां कहां पे, ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी. Cl is at the top and COCH3 will be attached at ortho position and para position. ये बेटा एसिटोफिनोन है. This is called as एसिटोफिनोन. इट इज ए कीटोन नाउ. आप इसका फंक्शनल ग्रुप चेक करो, कीटोन है तो पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन इसका नाम, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन. इट इज ओन, ये C डबल बॉन्ड O की वजह से ओन आ रहा है, ठीक है. और ऊपर वाला तो ऑर्थो प्रोडक्ट है, इट इज ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन एंड पैराक्लोरो दोनों बनते हैं. कहने का मतलब आंसर बना C ऑप्शन. ये रिएक्शन भी नेम्ड रिएक्शन है. दिस इज कॉल्ड एज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. एसाइल ग्रुप किसको कहते हैं, CH3CO. दिस इज कॉल्ड एज एसाइल ग्रुप और इसको एसिटाइल ग्रुप भी कहते हैं. वो एसाइल ग्रुप जो था वो कहां से जनरेट हुआ, वो बेटा AlCl3 ने जनरेट करवा दिया. AlCl3 हेलोजन कैरियर होता है, वो क्लोराइड को ले जाता है, फिर पीछे बच जाता है CH3CO+. CH3CO+ आपके रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है. ये जाके फिर क्लोरोबेंजीन के ऊपर अटैक करता है. एज अ रिजल्ट हमारे पास प्रोडक्ट आता है पैराक्लोरो एसिटोफिनोन. गॉट इट. So C option answer, named reaction था, important था. Coming to the next, now last question. Which of the following undergoes nucleophilic substitution most easily? You are given vinyl chloride and chlorobenzene, benzyl chloride and bromobenzene. This is vinyl chloride. विनाइल क्लोराइड के अंदर भी उसी तरीके से रेजोनेंस होती है जैसे क्लोरोबेंजीन में होती है. क्लोरोबेंजीन का केस आपने देखा था प्रीवियस क्वेश्चंस में. क्लोरोबेंजीन में लोन पेयर जो है वो कार्बन क्लोरीन को डबल बॉन्ड कर देता है थ्रू रेजोनेंस. और विनाइल क्लोराइड में भी सेम पोजीशन है, चेक कर लो. यू हैव डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर लोन पेयर. यहां पे भी यही था, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड फिर लोन पेयर, सेम एनवायरमेंट. तो यहां पे बेटा ये रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा. जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बन क्लोरीन जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड बन जाएगा. एज अ रिजल्ट फिर वो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता इजीली. तो आपके पास विनाइल क्लोराइड में तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी. क्लोरोबेंजीन भी इनर्ट होता है, उसमें भी नहीं होती. लेट्स कम टू सी ऑप्शन, बेंजाइल क्लोराइड. वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड. इसमें देखो हेलोजन कहाँ लगा है, क्या हेलोजन एरोमेटिक रिंग पे लगा है, नहीं. यहां पे तो उस तरीके से कोई प्लस एम नहीं होगा, कोई प्लस आर या प्लस एम नहीं है. एज अ रिजल्ट आपके पास ये स्ट्रक्चर आएगा, क्लोराइड सेपरेट. क्लोराइड अलग हो गया, क्लोरीन माइनस आई करता है, डेल्टा पॉजिटिव यहां, डेल्टा नेगेटिव यहां. दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइल कार्बोकेटायन. ये कार्बोकेटायन बेटा स्टेबल है. इट इज हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस. This carbocation is resonance stabilized. जब ये रेजोनेंस से स्टेबल है तो फिर इट मीन्स क्लोराइड सेपरेट हो जाएगा, हेलोजन इसका अलग हो गया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट हो जाएगी. अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके इसके ऊपर अटैच हो सकता है. बेंजाइल कार्बोकेटायन गिवन था, न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा तो प्रोडक्ट ये बनेगा. सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. बेंजाइल क्लोराइड का हेलोजन लेबाइल है, पर क्लोरोबेंजीन का, ब्रोमोबेंजीन का, विनाइल क्लोराइड का उनका जो हेलोजन है वो इनर्ट है, क्योंकि उनमें रेजोनेंस हो जाती है. रेजोनेंस रिएक्टेंट के अंदर ही हो गई तो प्रोडक्ट कैसे आएगा. सो सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर. वेरी इंपॉर्टेंट. सो इस चैप्टर में बेटा मेन सीखने की बात यह है, आफ्टर लर्निंग ऑल द रिएक्शंस, चैप्टर का कंक्लूजन ये है कि द गिवन एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड इज रिएक्टिव और नॉट. द गिवन कंपाउंड विल लूज हैलोजन और नॉट. जैसे कि बेंजाइल क्लोराइड है, अगर सिल्वर नाइट्रेट डालोगे AgCl प्रेसिपिटेट आएंगी,
पर अगर आप क्लोरोबेंजीन में सिल्वर नाइट्रेट डालोगे, नो AgCl प्रेसिपिटेट विल कम। दैट इज ऑल। सो एराइल हैलाइड के ऊपर डिस्कशन किया हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर, एंड you can have a quick revision for aryl halides as well as alkyl halides now. In the next video, I will be taking up NCERT exemplar questions of the same chapter. Those questions you will be able to do only if you are revising these concepts, right? So that is all. So make sure you subscribe to this channel so that you can get more videos, and it will help to revise the topic thoroughly. Thank you and bye bye.